Bismillahirrahmanirrahim. Dear all students of first year, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing very well. Dear student, as you know that we are doing the last chapter of your course. Last chapter of your course, that is Progress, one act play by Saint John Green Evan, one act play. Dear student, in previous lecture we did, we discussed about the author, and the author is, Saint John Green Evan. As I told you that he is Irish novelist, he is Irish playwright, and he is, drama writer, dramatist, as well. He is a theater manager, and he was the most influential, writer of his time. As I told you that, and then we discussed the background of the play. What are the reasons, behind, the writing of the play, and then we discuss, World War One. Okay, how World War One became the, instigating force writing this play. And then we discussed, what is one act play. As I told you that this play, Progress by Saint John Green Evan, is a one act play. So then we discuss one act play. In today's lecture, we will be discussing the summary of the play, and then we'll give a quick reading. As we are short of time, we have to finish course till 12th of April. So we'll start reading as well. Dear student, let me do the summary of the play. Let me discuss the summary of the play. The title of the play is Progress, written by Saint John Green Evan. So in this play, published in 1931 after World War One. ये जो प्ले हम पढ़ रहे हैं, ये 1931 में, पहली जंग अजीम के बाद इसको पब्लिश किया गया. पहली जंग अजीम जो थी वो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में. आई टोल्ड यू दैट इट वाज ओरिजिनेटेड इन यूरोप एंड लास्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918, 4 years तकरीबन इस पे हो गई. और इसमें जो डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन जो हो गई मैंने आपको डिटेल में बताया है. Dear students, so this play is published in 1931 after World War One. As this play, Progress, is one of powerful and highly sentimental anti-war play. As you know that this war is a highly powerful and sentimental war play. The play, this play is all about anti-war idea. It is a powerful and highly sentimental anti-war play, against the war. Anti-war mean against the war. As I told you that जो destruction हो गई थी, due to the destruction and due to the devastation and due to the death rate in World War One, civilian people are started talking about against. They become against the war. They becomes against warmongering idea. कुछ टाइम ऐसा भी था कि लोग क्या कहते थे, war is the ultimate way of progress in the world. ठीक है, दुनिया में तरक्की का क्या है जरिया? वार है. वार कर लो, किसी का वो ले लो, जायदाद ले लो, जमीन ले लो, पैसे ले लो, सब कुछ मफलूज बनाओ. तो लोगों का ये तासुर था. लेकिन जब डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो गई तो सिविलियन पीपल स्टार्टेड अगेन टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट वार. And they became anti-war idea. New anti-war ideas, started coming. So dear student, this is powerful and highly sentimental anti-war play. As I told you that this is one act play. Because it has only one act, and the whole idea is revolving revolving around the idea of war, that war is not good. War is just a systematic killing of people, nothing else. So dear student, as in previous class, as I told you that there is a conflict between two ideas. Two ideas are in the play. And there is a conflict between these two ideas. These two ideas are, one idea is represented by Professor Corey, that Professor Corey represents the deadliest nature of war and warmongering idea. Okay, dear student, in this play, Professor Corey is a character. There are two main characters, one minor character is that. Two main characters, as I told you, we discussed the character as well.
characters as well. There are two characters in the play. That is Professor Henry Corey, a scientist, and the other one is Mrs. Meldon, Corey's sister, and Hannah. Hannah is the servant of Corey, Professor Corey. So in this play, Professor Corey represents the deadliest nature of war and warmongering idea. यानी यहाँ पे डेडलीस्ट नेचर ऑफ वार को, वार मॉन्गरिंग आइडिया को क्या करता है, प्रमोट करने वाला जो कैरेक्टर है वो है प्रोफेसर कोरी. दैट इज वन आइडिया, एक आइडिया है. ऑन द अदर हैंड his sister Mrs. Meldon represent the soft nature and motherly nature and philanthropist nature. On the other hand, Mrs. Meldon जो है वो प्रोफेसर कोरी की सिस्टर जो है वो क्या करती है, सॉफ्ट नेचर को, मदरली नेचर को और फिलैंथ्रोपिस्ट नेचर को, ठीक है, यानी इंसान पसंदाना दोस्त, इंसान दोस्त नेचर को क्या करती है, आइडिया को वो रिप्रेजेंट करती है. So in the beginning of the play, we find Professor Corey is happy that he has just finished his experiment of new bomb. When the play begins, we find Mr. Corey, Professor Henry Corey is very absorbed and very happy that he sometimes, he is very absorbed. He even does not go to receive his sister from the station. So he was very observed. He was very observed with his with his experiment, and he is very happy. In the beginning of the play, we find him that he has just finished his experiment of new bomb. वो एक नया बम बनाने वाला था, नए बम का एक्सपेरिमेंट कर रहा था. और बम क्या था? He is talking about more destruction, ज्यादा तबाही के बारे में सोच रहा था. और ये क्या कर रहा था? ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वो वार मॉन्गरिंग आइडिया को प्रमोट करता है, वार मॉन्गरिंग आइडिया को प्रमोट करने वाला है. He wishes to tell his sister about his experiment. यानी we find in the very beginning of the play that he is very happy, but he also wants to tell his achievement about his sister. ठीक है, tell his sister about his achievement. अपने achievement के बारे में अपने sister को भी बताना चाहता है. So Mrs. Meldon is dressed in black because that was the day her son. That was her son anniversary. आज का जो दिन जो था वो मिसेस मेल्टन के बेटे की डेथ एनिवर्सरी थी. इस वजह से वो क्या थी, she is dressed in black. वो ब्लैक कपड़ों में थी, यानी ब्लैक कपड़ों में मातम को रिप्रेजेंट करती है. वो मातम कर रही थी, जबकि उसका भाई क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट करके बहुत खुश था और उसको बताने वाला था. She has lost her son in the war. ठीक है, मिसेस मेल्टन जो है अपने बेटे को वार में क्या किया था, खो दिया था, वो मर गया था उसका बेटा. When Professor Corey tells about the idea of deadliest bomb that can destroy everything in no time, in no minutes. यानी जब प्रोफेसर कोरी क्या करता है, जब प्रोफेसर कोरी अपने सिस्टर को यानी बता देता है, क्या है, अपने सिस्टर को जब बता देता है कि मेरी ये जो बम है, जो बम का आइडिया जो है, that is very deadliest and very dangerous one and it can destroy everything in no minute. यानी लम्हों में, मिनटों में वो क्या करेगा, सब कुछ खत्म कर देगा. She becomes disturbed more. यानी क्या होती है, उसकी सिस्टर मजीद डिस्टर्ब हो जाती है उसकी वजह से. जब उसे ये बताया जाता है कि ये बम जो मैंने आइडिया बनाया हुआ है, एक ऐसा बम है which is more deadliest in nature, which is more devastating, which is more destructive in nature, that it will kill thousands of people in no minute. ठीक है, she says that war is nothing but a systematic killing of people. She becomes more disturbed. She feels that war is a barbarism on civilized form. मिसेस मेल्टन कहती है that the idea of war is just a barbarism. ठीक है, ये barbarism है, ये जुल्म है. किस तरह है, civilized प्लेटफॉर्म पे जुल्म किया जा रहा है. And says that war is nothing but a systematic killing of people. वार क्या है, कुछ भी नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक किलिंग है. लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिकली क्या किया जाता है, उनको मारा जाता है वार में. और क्या कहती है, she tells her brother that his invention is just a fool invention. ठीक है, अपने भाई को कहती है कि आपका जो ये इन्वेंशन है, आपकी जो अचीवमेंट है, इट इज जस्ट अ फुल इन्वेंशन, इट इज जस्ट अ फुल अचीवमेंट, इट इज जस्ट अ फुल इन्वेंशन. तुम्हारी जो इन्वेंशन है, तुम्हारी जो इजाद है, ये क्या है, फुल इन्वेंशन है. ये क्या है, इसमें कोई वो नहीं है, बेनिफिट नहीं है, ह्यूमैनिटी की कोई बेनिफिट नहीं है. विच इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन, विच इज ऑल अबाउट डिवास्टेशन. ठीक है, ये सब कुछ तबाही के बारे में है, उसमें कुछ नहीं है. एंड फोर्सेस हिम टू डिस्ट्रॉय इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी.
और अपने भाई से यानी मिसेस मिल्टन कहती है और उसे यानी फोर्स करती है अपने भाई को कि आप क्या करें, इसको ज़ाया करें, इसको ख़त्म करें, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी। आप इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाम पर, इंसानियत के फ़ायदे के लिए इसको डिस्ट्रॉय करें, इसको ख़त्म करें। But on the other hand, Professor Corey is proud on his invention that it will kill thousands in no time. यानी Professor Corey क्या है? He is very happy about his invention that it will kill thousand people, it will kill millions people in no time, and it will give and it will bring fame and wealth to him. यानी ये उसे ये भी पता चलता है कि क्या होता है, मेरी इस इन्वेंशन की वजह से क्या होगा, मुझे शोहरत मिलेगी, मुझे दौलत मिलेगी। Greed of wealth has made him so materialistic and selfish। यानी क्या कर देता है, इस लालच की जो ग्रीड जो है, लालच जो है उसे क्या कर देता है, ये लालच उसे मटीरियलिस्टिक बना देता है और सेल्फिश बना देता है। That he decides to offer it to someone else if not paid by the government। ये बात भी बहुत बड़ी यानी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। वो क्या करता है प्रोफेसर कोरी, ये बात इस बात की भी फैसला कर लेता है, अगर गवर्नमेंट उसे सही तरीके से पेमेंट ना करे वो किसी और को भी ये आइडिया दे सकता है। बिकॉज यानी वो यहाँ पे क्या करता है, मुल्क के साथ गद्दारी की भी सोच लेता है, क्योंकि जब ग्रीड ऑफ वेल्थ जो है, ग्रीड ऑफ वेल्थ क्या कर लेता है, इट इज मेक्स हिम सो मटीरियलिस्टिक एंड सो मटीरियलिस्टिक एंड ग्रीडी एंड सेल्फिश बना देता है उसको। it has made him so treacherous as well। ये उसे बहुत धोखेबाज भी बना देता है। ये आइडिया जो है वो क्या कर लेता है, that it will bring him fame and wealth to him, he becomes greedy। वो ग्रीडी बन जाता है, लालची बन जाता है। और ग्रीड जो है इसे क्या कर देता है, ग्रीड जो है वो उसे लालच की यानी दौलत की जो ग्रीड जो है वो उसे मटीरियलिस्टिक और सेल्फिश बना देता है। जब वो सेल्फिश नेचर के साथ वो क्या कहता है, कहता है कि मैं क्या करूंगा, I will sell it, I will offer the idea to someone else if not paid by the government properly। जब गवर्नमेंट मुझे प्रॉपर तरीके से पे नहीं करेगा फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको किसी और को भी दे सकता हूँ, किसी और को भी ऑफर कर सकता हूँ। तो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, what Mrs. Milton does, Mrs. Milton wants to see, wants to save humanity। वो humanity को क्या करना चाहती है, बचाना चाहती है। and for the sake of humanity kills her brother। यानी अब क्या कर लेता है मिसेस मिल्टन जो है, इंसान दोस्ती को, इंसान को बचाने के लिए, इंसान की बेनिफिट के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए क्या करती है, अपने भाई को मार देती है। इस कहानी में ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं कि एक जो है मदरली नेचर को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा जो है वार मॉन्गरिंग आइडिया एंड बारबेरिज्म एंड डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लास्ट में जब उसे यानी मिसेस मिल्टन फोर्सेस हर ब्रदर टू डिस्ट्रॉय द आइडिया, द इन्वेंशन, द आइडिया ऑफ बम इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, उसे जब फोर्स करती है तो ही डिनाइज, वो इनकार करता है और एंड सेज दैट इट विल ब्रिंग हिम फेम एंड वेल्थ। ये क्या करेगा, उसे दौलत भी दे देगा, शोहरत भी दे देगा। The greed of wealth makes him so materialistic and so selfish। वो बहुत ही सेल्फिश बन जाता है। He even says that he will offer it to someone else if not paid by the government properly। अगर उसे गवर्नमेंट सही तरीके से पेमेंट नहीं करता, दौलत नहीं देता, एक्नॉलेज नहीं करता, शोहरत नहीं देता, तो वो ये आइडिया किसी और को भी बेचने को तैयार है। तो for this purpose, for the sake of humanity, as I told you that Mrs. Milton जो है वो क्या करती है, सॉफ्ट नेचर, मदरली नेचर, केयरिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है। मिसेस मिल्टन वांट्स टू सेव ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटी को बचाना चाहती है। एंड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी शी किल्स हर ब्रदर, अपने भाई को क्या कर देती है, वो मार देती है इस कहानी में। इट इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द प्ले। Dear student, we discussed the summary of the play. The summary, this is the play is very simple. As I told you that this is one act play and the play revolves around a single idea, a single theme, that is war is a destruction, war is nothing but a systematic killing of people, war is nothing, ठीक है, but just a systematic killing of people, that war is not good, war is not in the benefit of humanity, ठीक है। So dear student, let me read the scene for you. Let me read first of all the setting. There is, the writer has given us little bit description in the play, in the beginning of the play. Then the play begins.
Dear students, open your book at page number 205. Okay, scene, first line. The scene of the play is laid in the study room of Professor Henry Corey in a remote village in north of England on a spring day in the year 1919. यानी कहता है कि ये सीन जो है कहाँ पे रूनुमा होती है, कहाँ पे वकूअ पजीर होती है, ये जो है यानी प्रोफेसर हेनरी कोरी के रूम में, ठीक है, इन ए रिमोट विलेज मीन फार विलेज, दूर किसी गांव में, रिमोट मीन फार अवे, दूर किसी गांव में, इंग्लैंड के दूर किसी गांव में, नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, शुमाल की जानिब, क्या है, ऑन स्प्रिंग डे, बहार के दिनों में, बहार का कोई दिन है, इन द ईयर 1919 में. The room is tidy enough. Tidy mean neat, clean. ठीक है, the room is tidy enough. Tidy mean clean. ठीक है, साफ सुथरा रूम को नीट रूम को कहा जाता है, neat and clean. Arranged mean you can say tidy enough mean arranged enough, clean enough, and neat enough. With the tightness of a house dominated by a bachelor who is dominated by his work rather than by domestic comfort. कहता है कि with the tightness of the house यानी उसकी नीटनेस के अलावा, उसकी जो सफाई के अलावा, dominated by a bachelor, वहाँ पे कौन रहता है, एक dominated by a bachelor, एक बैचलर इंसान जिसकी शादी नहीं हुई है, बंदा है 60 साल 50 साल का बंदा है, वो उसमें रहता है. Who is dominated by his work, जो क्या करता है, गालिबन उसके काम ने उसको डोमिनेट किया हुआ है, वो बिल्कुल अपने काम में मगन है. rather than by domestic comfort. Domestic comfort कुछ नहीं है, सिर्फ उसके रूम में क्या है, उसके वर्क जो है, उसके जो काम जिस पे काम कर रहा है, he is completely absorbed in his work. और आपको ये बता देता है, and on the last table near the center of the room there is a litter of scientific apparatus employed by Professor Corey in the experiment in which he is now engaged. आपको ये भी बता देता है कि रूम के सेंटर में क्या है, एक बड़ा सा टेबल लगी हुई है, उस टेबल के ऊपर क्या है, कुछ गंद पड़े हुए हैं, किस चीज़ के, साइंटिफिक एपरेटस, यानी साइंटिफिक एपरेटस, साइंसी आलात के, साइंसी आलात के कुछ पड़े, वो एपरेटस के वो कुछ लिटर पड़े हुए हैं, एम्प्लॉयड बाय प्रोफेसर कोरी, जिनका इस्तेमाल उसने क्या किया है, प्रोफेसर कोरी ने इस्तेमाल किया है, इन द एक्सपेरिमेंट इन विच ही इज नाउ एंगेज, इस एक्सपेरिमेंट में, उस तजुर्बे में, ही इज नाउ बिजी, ही इज नाउ डूइंग, या ही इज नाउ वर्किंग ऑन दैट एक्सपेरिमेंट. ऑन द वॉल ऑफ द रूम देयर आर ए नंबर ऑफ डायग्राम्स, दीवारों पे कुछ डायग्राम्स लगे हुए हैं, शोइंग सेक्शन वेरी लार्ज बम, यानी बड़े 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 बमों के सेक्शंस को दिखाया गया है उस तस्वीरों में, उस डायग्राम्स में. There is a model of big bomb on a stand underneath of these diagram. यानी इन डायग्राम्स के नीचे एक बड़े से स्टैंड में क्या लगी हुई है, बड़े बम की एक डायग्राम लगी हुई है, मॉडल लगी हुई है. There are sectional diagrams of aeroplane and airship to be seen. यानी एरोप्लेन और एयरशिप के क्या है, कुछ डायग्राम्स भी, सेक्शनल डायग्राम जो है टुकड़ों के यानी पार्ट्स के डायग्राम भी लगे हुए हैं उसी रूम में. Also fairly large model of aeroplane and airship, बड़े जहाज़ों और बड़े एयरशिप का क्या पड़ा हुआ है, यानी डायग्राम्स भी लगे हुए हैं उसी रूम में. यानी द वॉल, सारे दीवारों पे क्या है, कुछ तस्वीर आविज़ान है, कुछ मॉडल्स आविज़ान है, कुछ चार्ट्स आविज़ान है जिसमें डायग्राम्स है, एरोप्लेन के है, एयरशिप के है. प्रोफेसर हेनरी कोरी, एज बिटवीन 50 and 60, जिसकी उम्र क्या है, 50 से 60 साल की उम्र का बंदा है, इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द टेबल वाचिंग अ केमिकल प्रोसेस इन अ लार्ज रिटॉर्ट. क्या करती है वो, मेज के यानी एट द सेंटर ऑफ टेबल, यानी टेबल के बिल्कुल सेंटर पे बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, वाचिंग ए केमिकल प्रोसेस इन द लार्ज रिटॉर्ट, बड़े से रिटॉर्ट में. रिटॉर्ट मीन फ्लास्क को कहा जाता है. फ्लास्क ऑफ केमिकल स्टूडेंट वाले जो है वो इजीली पहचान जाएंगे कि क्या है, फ्लास्क है, फ्लास्क को कहा जाता है. फ्लास्क ऐसा एक बेकर होता है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कोई फिजिकल केमिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसे फ्लास्क कहा जाता है. बड़ा सा कोई बर्तन होता है या बड़ा सा कोई बेकर होता है जिसे बेकर भी कहा जाता है, ठीक है, फ्लास्क, ठीक है, उसमें क्या है, वो एक्सपेरिमेंट को वॉच कर रहा होता है. ही हैज कोल्ड ह्यूमरलेस आइज, उसकी आंखें सर्द है, ह्यूमरलेस है जी, जिसमें कोई मजा नहीं है, बिल्कुल सीरियस अंदाज में बैठा हुआ है. एंड हिज माउथ, और उसका मुंह जो है क्या है,
if it were not concealed by a thickish beard, अगर उसके चेहरे पे अगर कमजोर सी हल्की सी दाढ़ी ना होती तो फिर क्या होती, would be seen to have cruel lines about it, उसमें क्या जालिमाना लाइंस आपको नजर आ जाते। अगर उसमें दाढ़ी ना होती, हल्की सी दाढ़ी ना होती तो आपको जालिमाना लाइन यानी बड़ी ही परेशान कुन अंदाज की लाइन जो है आपको नजर आते होंगे। और कहते हैं कि he does not however impress the casual visitor as cruel man indeed, यानी जालिम इंसान की तरह वो कैजुअल जो विजिटर जो है उनको पसंद नहीं करता। जो कैजुअल विजिटर उसके पास आते थे, लोग आते थे, मिलने आते थे, तो उनको बिल्कुल वो क्या करता था, माइंड करता था, यानी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। डज नॉट लाइक, उनको क्या करता था, पसंद ही नहीं करता था। ही सीम्स टू बी हार्मलेस, अगरचे वो क्या है, ऐसा लगता है कि वो हार्मलेस है, किसी के से उससे कोई नुकसान नहीं है। काइंडली यानी इनकॉन्सिक्वेंशियल, इलॉजिकल पर्सन, वो क्या है, इनकॉन्सिक्वेंशियल, कंसिक्वेंट मीन इलॉजिकल। इलॉजिकल बंदा जो है आपको नजर आ जाएगा। कंप्लीटली एब्जर्व, अपने काम में मसरूफ, कंप्लीटली मुकम्मल तौर, कंप्लीटली एब्जर्व इन हिज वर्क, ठीक है, अपने काम में मसरूफ आपको नजर आ जाएगा। ऑफ कोर्स इन हिज वर्क, यानी खास अपने काम में ही मसरूफ नजर आ जाएगा। इट इज व्हेन ही इज एंग्री दैट समथिंग ऑफ हिज क्रुएल्टी इज ऑब्जर्वेबल, ही इज इंक्लाइंड, यू नो, it is when he is angry that something of his cruelty is observable। ये ऐसा होता है जब कभी वो गुस्सा होता था तब उसका जो जालिमाना अंदाज जो है, क्रुएल्टी जो है वो नुमायां होती, ऑब्जर्वेबल होती थी, यानी नजर आती थी उसकी, जो जब वो गुस्सा करता था। he is inclined to utter wolfish snarl, wolfish snarl mean savage, wolfish किसे कहा जाता है, wolfish mean savage, यानी सेवेज कहते हैं जंगली को, यानी बहुत वहशियाना, वहशियाना उसका क्या होता था। सिनाल मीन ग्रोल, आवाज, गुस्सा करना, ठीक है। सिनाल इफ ही वाज थॉटेड और हिंडर्ड इन एनी साइंटिफिक वर्क, इफ ही इज थॉटेड और हिंडर्ड इन एनी वे, अगर उसे कोई अपोज करता, थॉटेड मीन अपोज, ठीक है। Thwarted mean opposed, अगर कोई उसकी मुखालिफत करता था, ठीक है, या उसको कोई हिंडर करता था, हिंडर मीन स्टॉप करना, ठीक है, किसी को रोकना। अगर कोई उसे रोकता था या कोई उसे स्टॉप करता था या कोई उसे अपोज करता था, वो क्या करता था, वो वुल्फिश सिनाल करता था, यानी वुल्फिश सिनाल मीन वहशी अंदाज में वो आवाजें निकालता या गुस्सा करता था। बट द मोस्ट सर्टेन साइड ऑफ हिज फंडामेंटली क्रूअल कैरेक्टर इज इन हिज साइंटिफिक वर्क, यानी ज्यादातर उसकी क्या थी, यानी उसकी सेवेज जो थी, क्रूअल नेचर की जो कैरेक्टर जो थी, वो किस वक्त नुमाया होती, जब कोई साइंटिफिक वर्क में उसे डिस्टर्ब कर देता था, जब साइंटिफिक वर्क करते हुए कोई उसे डिस्टर्ब कर देता था। नथिंग इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू हिम देन दैट, यानी उसकी साइंटिफिक वर्क से बढ़कर कोई भी उसके लिए हमने, नथिंग इन द वर्ल्ड वाज, यू नो, सो इंपॉर्टेंट टू हिम देन हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से बढ़कर कुछ भी नहीं था इवन। यानी इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, वो अपने, यानी ही वाज सो एब्जर्व इन हिज, यू नो, एक्सपेरिमेंट दैट ही इवन फॉरगॉट टू रिसीव हिज सिस्टर फ्रॉम, यू नो, फ्रॉम स्टेशन, ठीक है, वो इवन अपने काम में इतना मसरूफ होता है कि अपने सिस्टर को लाने भी उधर जाने से यानी भूल जाता है। ओके, a human being is of less consequence to him than the success of even a minor experiment, यानी ये बात क्लियर आपको बता, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, इंसान की कोई अहमियत नहीं थी उसके सामने, इंसान की कोई रिजल्ट उसके सामने, लेस कंसिक्वेंस, यानी कंसिक्वेंस, उसके कोई कंसिक्वेंस नजर आ नहीं है टू हिम देन द सक्सेस इवन माइनर एक्सपेरिमेंट, यानी अपने माइनर एक्सपेरिमेंट में कामयाबी को वो किसी किस्म के इंसानी, यानी उससे अहमियत से ज्यादा उसको अहमियत देता था अपने, यानी माइनर एक्सपेरिमेंट को ज्यादा अहमियत देता था। he regards the retort very closely, now he was looking, he was regarding, he was observing, यानी अब क्या कर रहा था, रिगार्डिंग ऑब्जर्व, यहाँ पे इसका मतलब जो है ऑब्जर्व है, ठीक है, वो अपने फ्लास्क को, रिटोर्ट को क्या कर रहा था, और रिटोर्ट को बड़े संजीदगी से, बड़े क्लोज तरीके से वो क्या कर रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। मटरिंग टू हिमसेल्फ एज ही डज सो, वो बुड़बुड़ा रहा था, मीन अपने आप से बातें कर रहा था। टॉकिंग टू हिमसेल्फ, मटरिंग मीन टॉकिंग टू हिमसेल्फ, मटरिंग मीन
टॉकिंग टू वनसेल्फ, ठीक है, खुद से बातें करना। वो खुद से क्या कर रहा था, बातें कर रहा था, बुड़बुड़ा रहा था मुंह ही मुंह में, ठीक है, वो कुछ कह रहा था जो अक्सर करता था। समटाइम हिज मटरिंग्स आर ऑफ सेटिस्फैक्शन, बाज़ औक़ात उसके मटरिंग्स जो थे, जो टॉकिंग जो थे खुद से, वो मुतमईन कर देने वाली थी, यानी सेटिस्फैक्शन के, अब उसके मुतमईन होने की वो कुछ आवाज़ें थी, शोर, यानी बातें कर रहा था। समटाइम्स ऑफ एंजाइटी, बाज़ औक़ात परेशानी के थे, एंजाइटी किसे कहा जाता है, डिप्रेशन को कहा जाता है एंजाइटी। एंजाइटी मीन परप्लेक्स्ड, anxiety mean depression, you can say depression, ठीक है, perplexed, perplexity को भी कहा जाता है, ठीक है, बाज़ औक़ात perplexity कहते हैं, परेशानी के मटरिंग करते थे। once of rage then turns again to satisfaction, बाज़ औक़ात गुस्से के भी थे, rage mean anger, ठीक है, rage से कहा जाता है, anger को कहा जाता है। उसकी मटरिंग क्या होती थी, कभी कभार सेटिस्फेक्शन के होती थी, कभी एंजाइटी के होते थे, कभी रेज के होते थे, गुस्सा होता था, मटरिंग यानी अपने आप से बातें करते हुए, और बाज़ औक़ात फिर सेटिस्फेक्शन के होते हैं। A knock is heard on his study door, यानी जिस रूम में वो पढ़ाई करता था, जिस रूम में वो स्टडी करता था, उसमें क्या था, उसके रूम में स्टडी डोर पे कोई नॉकिंग कर रहा होता है, ये एक सेटिंग है उसका, नॉकिंग कर रहा होता है, बट ही डज नॉट हियर इट, लेकिन वो उसको नहीं सुनता, वो उस नॉक को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इट इज रिपीटेड, ये दोबारा होता है नॉकिंग। ही लीन्स फॉरवर्ड टू ग्लांस मोर क्लोजली एट द रिटोर, वो क्या करता है, वो झुक जाता है, लीन्स मीन झुक जाना, बेंड हो जाना, लीन्स वो क्या होता है, लीन्स मीन, लीन मीन बेंड, ठीक है, वो झुक जाता है, टू सी हिज फ्लॉस, टू सी द रिटोर क्लोजली, यानी मजीद उसको नजदीकी से देखने की क्या करता है, झुक जाता है। एंड देन विद अ शाउट ऑफ प्लेजर, यानी अचानक क्या करता है, खुशी से चीख उठता है, राइजेस अप एंड कंटेम्पलेट इट, और क्या करना करता है, और उस पर सोचने लगता है। कंटेम्पलेट मीन गौर कर लेना, कंटेम्पलेट मीन थिंक, ठीक है, इस पे क्या करने लगता है, वो सोचने लगता है, गौर करने लगता है, टू थिंक उस पे, यानी कैसा हुआ। द नॉक इज हर्ड फ्रॉम द थर्ड टाइम, और दोबारा तीसरी दफा क्या होता है, उसके दरवाजे पे दस्तक होती है, नॉक होती है उसके दरवाजे पे। अब क्या होता है, प्रोफेसर कोरी क्या कहता है, बेंडिंग ओवर टू रिटोर्ट एंडिंग द एक्सपेरिमेंट, अपने रिटोर को, अपने फ्लास्क पे क्या होते हैं, झुकते हुए, अपने एक्सपेरिमेंट को खत्म करते हुए क्या कहता है, एट लास्ट बाय हेवन आई हैव डन इट एट लास्ट, कहता है ओए आखिरकार, यानी बाय हेवन, यानी उसकी, यानी कसम उसकी कि मैंने क्या कर दिया, आई हैव डन इट एट लास्ट, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, मैंने इसको यानी डन किया दिया। ए वेरी लाउड नॉक ऑन द डोर, यानी डोर पे क्या होती है, ऊंची आवाज में दस्तक होती है। ही टर्न्स राउंड टू पजल इन ए पजल फैशन, यानी परेशान अंदाज में, पजल फैशन में वो क्या करता है, पीछे की तरफ मुड़ता है, ए ओ कम इन कहते हैं कि अंदर आइए, जो दरवाजे पे जो दस्तक हो रही थी ना, कहते हैं कि अंदर आ जाइए। द डोर ओपन्स एंड elderly servant enters, जब दरवाजा खुल जाता है तो उसका नौकर क्या होता है, अंदर आ जाती है। सर्वेंट कौन था, मिसेस मेल्डन, ठीक है, सर्वेंट क्या कहती है, सर्वेंट आके हना, सर्वेंट का मैंने आपको बताया था, हना उसका नाम है, वो आगे कहती है मिसेस मेल्डन, मिसेस मेल्डन डॉट यानी इट मींस दैट मिसेस मेल्डन आई हुई है, आपकी सिस्टर आई हुई है। कोरी यस यस हना व्हाट इज इट, क्या है मिसेस मेल्डन, क्या है, यानी हना कहती है उसको, हना मिसेस मेल्डन wants to know whether you will come downstairs to tea or have it up here। मिसेस मेल्डन ये जानना चाहती है, आपकी सिस्टर आई हुई है, वो जानना चाहती है कि आप चाय के लिए नीचे आएंगे या आपको चाय इधर सर्व कर दूं। हना उसे पूछती है कि आपकी सिस्टर जो है वो नीचे आई हुई है, क्या आप चाय के लिए नीचे आएंगे या चाय यही पिएंगे। कोरी कहता है हैज शी गॉट बैक, क्या वो वापस आ गई, क्या मिसेस मेल्टन जो है वापस घर आ गई। हना उसकी यस सर, शी एक्सपेक्टेड यू टू मीट हर एट द स्टेशन सर, शी वेटेड अ लॉन्ग टाइम इन द कोर्ट देन गॉट मार्शल टू ड्राइव अप हियर। हना उसे बता देती है कि सर आपकी सिस्टर जो है वो उसकी ये तवक्कुआत थी कि आप उसे स्टेशन पे मिलेंगे, इसने स्टेशन पे आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत वेट किया, फिर क्या किया, फिर मार्शल ने उसको गाड़ी में यहाँ छोड़ दिया, मार्शल को उसने बुलाया, फिर गाड़ी ने यहाँ से उसको छोड़ दिया। कोरी आई मीन टू गो, कोरी कहता है, प्रोफेसर कोरी कहता है मुझे तो जाना था, मेरा मतलब मुझे जाना था, बट आई वॉज बिजी, लेकिन मैं मसरूफ था, एंड देन फॉरगॉट, और फिर मैं भूल गया।
बट शी इज क्वाइट केपेबल ऑफ कमिंग होम बाय हरसेल्फ। कहता है कि वो तो मेरी सिस्टर जो है वो इस काबिल है, वो खुद आ सकती है, अकेले भी आ सकती है, वो अकेले घर आ सकती है। शी कैन कम टू होम, यू नो शी इज केपेबल ऑफ कमिंग होम बाय हरसेल्फ, वो इजीली वो आ सकती है ना। अब हना क्या कहती है, यस सर विल यू कम डाउन स्टेयर टू टी सर, क्या आप चाय पीने नीचे आएंगे, और हैव इट अप हियर, क्या आप यही पिएंगे चाय। कोरी द ड्राइंग रूम्स को सो कोल्ड, ड्राइंग रूम जो है वो क्या है, वो जहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, ड्राइंग रूम क्या है, वो क्या है, सो कोल्ड है, ठंडी है। टेल मिसेस मेल्टन दैट आई विल हैव इट अप हियर, मैं क्या करूँगा, उसको बता दो कि मैं चाय यही पीऊँगा। आई हैव न्यूज़ फॉर हर, मेरे क्या है, मुझे उसके लिए एक अच्छी खबर है, एक खबर है उसके लिए, एक इन्फॉर्मेशन, एक खबर उसको देना है। टेल हर दैट आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर हर, उसको ये बता दो, यानी प्रोफेसर कोरी अपने सर्वेंट हना से कहता है कि मेरे सिस्टर को बता दो कि मेरे पास क्या है, उसके लिए गुड न्यूज़ है। माई एक्सपेरिमेंट इज एंडेड एंड इट इज सक्सेस, मेरी एक्सपेरिमेंट जो थी, मेरा तजुर्बा जो है वो खत्म हो गया और ये कामयाब तजुर्बा हुआ, है ना। इट इज, ये सर, अच्छा इज इट सर, ऐसा हुआ, आपकी एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हुआ। कहता है कि कोरी कहते हैं यस बट इज ऑफ नो यूज टेलिंग यू अबाउट इट, आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। अपने नौकर से कहता है कि आपको बताने का कोई फायदा नहीं, देयर इज नो नीड टू टेलिंग यू, देयर इज नो बेनिफिट टू टेलिंग यू, आपको यूज यानी आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। यू वुडंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझेंगे, है ना। नो सर, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। कोरी कहता है बट आई एम प्राउड मैन, नाउ आई एम अ प्राउड मैन दैट आई हैव बीन सक्सेसफुल इन माय एक्सपेरिमेंट, यानी उसे ये बता देता है कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट में क्या हूँ, मैं प्राउड बंदा हूँ अभी। और आगे ये कहता है कि है ना, परहैप्स यू विल अंडरस्टैंड दैट, गो एंड टेल मिसेस मेल्टन, यानी शायद आप समझेंगे, और जाओ उसको बता दो, जाओ मेरी सिस्टर जो है मिसेस मेल्टन को बता दो कि मैं प्राउड आदमी हूँ, प्राउड मैन हूँ अभी, है ना। यस सर। कोरी कहता है कि डोंट फॉरगेट टू टेल हर दैट माय एक्सपेरिमेंट इज अ सक्सेस, उसे ये बताना मत भूलिए देख कि मेरी एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हुई है, सक्सेस हुई है। और आगे तक आर नो यू वुड बेटर नॉट टू टेल हर, बेहतर ये होगा कि आप ना बताएं, बेहतर ये होगा कि आप मेरी सिस्टर को ना बताएं। आई विल डू दैट माई सेल्फ, मैं खुद बताऊंगा उसको। यू आर श्योर टू मेक ए मेस ऑफ इट, मुझे यकीन है कि आप इसका वो बनाएंगे, मेस करेंगे इसको, यानी इसका वो करार, इसका मजा जो है वो खराब करेंगे, इसको मेस करेंगे, मीन इसको ऐसे अंदाज में पेश करेंगे जिसका मजा ही ना होगा, ये मैं खुद करूंगा। She will be as pleased as I am, मेरी सिस्टर इतनी खुश होगी जितना मैं खुश हूँ, मेरी सिस्टर भी उतना ही खुश होगी। हना कहती है कि she is not very happy today sir, सर वो आज बहुत खुश नहीं है, सर वो परेशान है, वो खुश नहीं है, वो खफा है आज, है ना। well कोरी कहते हैं not happy, why I am happy aren't I, यानी अपने हना से, अपने नौकर से, अपने सर्वेंट से पूछता है क्या मैं खुश नहीं हूँ, क्यों खुश नहीं है वो मेरी सिस्टर, खुश क्यों नहीं है, मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश नहीं हूँ, उनसे सवाल पूछता है। कोरी कहता है कि नॉट हैप्पी, व्हाई आई एम सॉरी। हना कहती है कि वेल यू सी सर इट इज 3 years ago today since her son was killed in the war, यानी हना उसे बता देती है कि सर आप तो जानते होंगे ना कि 3 साल पहले इसी दिन उसका बेटा वार में मारा गया, यानी जंग में मारा गया था। अब कोरी क्या कहता है, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग हिज ग्रीवियंस, यानी अपने जो ग्रीवियंस जो थे, अपने जो ग्रीवियंस कहते हैं यानी गमों को, ठीक है, अपने गमों को हमेशा बुलाते हुए, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग सब कुछ बुलाते, ओ यस आई हैड फॉरगॉटन दैट, ओ मैं तो भूल चुका था, आई हैड फॉरगॉटन दैट, मैं तो भूल चुका था। ऑफ कोर्स वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, यानी यानी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोच को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वन कैन नॉट कीप, यानी कोई इस तरह नहीं कर सकता कि वन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, इन चीजों के बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता, ऐसी सोच है कि जिनको वो नहीं किया जा सकता। हना कहती है शी डज, यानी वो सोचती है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो सोचती है इन चीजों के बारे में। अब कोरी क्या कहता है आई एम सॉरी आई डिडंट मीट हर एट द स्टेशन, मुझे अफसोस है कि मैं उसे स्टेशन पे लेने नहीं गया, बट आई हैड टू अटेंड माय एक्सपेरिमेंट, लेकिन मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट को अटेंड करना था, मुझे अपना एक्सपेरिमेंट को अटेंड करना था, है ना। आई विश शी वुडंट डेवल इन एडीज डेथ, यानी मेरी ख्वाहिश थी शी वुड नॉट डेवल ऑन एडीज डेथ, एडीज उसका बेटे का नाम है, ठीक है, अपने एडीज के डेथ पे, यानी शायद वो नहीं रह पाती। इट इज नॉट राइट फॉर द लिविंग टू थिंक सो मच ऑफ द डेड, यानी कहता है कि इट इज नॉट राइट, ये अब ठीक नहीं है, अब ये ठीक नहीं है कि
जो जिंदा बंदे हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है, ये सही बात नहीं है कि वो मरे हुए लोगों के बारे में ही सोचते रहे, ये अच्छी बात नहीं है। शी इज वुमन, क्या है, वो औरत है। ऑफ कोर्स, एंड ए मदर, वो बिल्कुल वो औरत है, और उससे बढ़कर वो क्या है, वो माँ है। ए ब्रीव मदर, ए बोल्ड मदर, क्या है, ब्रीव मदर मीन बोल्ड मदर। ब्रीव मदर मीन ब्रीवमेंट और ब्रीव में ये फर्क इतना है कि वो इंसान जिसके यानी वो क्या करे, उसमें इंसान में जब जो मायूसी पैदा होती है, डिब्रीवमेंट उसे कहा जाता है ना, कि डिप्रीवेशन स्पेशली द लॉस ऑफ रिलेटिव्स बाय डेथ, जब उसके रिश्तेदार कोई मर जाता है या कोई उसमें रिश्तेदारों की मौत पे वो क्या होते हैं, जो मायूसी इंसान में छा जाती है उसे ब्रीवमेंट कहा जाता है। मीन ए ब्रीव मदर, एक ऐसी माँ जिसकी कोई क्लोज इंसान, कोई रिलेटिव्स मर चुका है। वी मस्ट मेक अलाउंस, वी मस्ट मेक अलाउंस, यानी हमें क्या करना है उनके बारे में, यानी उसके लिए, यानी वी मस्ट मेक अलाउंस हना, यानी हना से कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, उसके यानी गमों को दूर करना होगा। वो क्या है, बेशक हमने कुछ यानी ऐसे चीज़ें निकालना है, ऐसे तरीके करने हैं कि जिसपे क्या हो, जिसपे ये हो कि इस परेशानी को, इस गमों को यानी दूर कर दिया जाए। दैट इज ऑल, बात यही है, कोई ना कोई तरीका निकालना है। Now, if we tell her about my successful experiment, how would they do? यानी कि अगर हना से पूछता है, अगर मैं अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में उससे पूछूं, अपने तजुर्बे के बारे में उसको पूछूं, सक्सेसफुल तजुर्बे के बारे में उसको बता दूं, how would they do? उसे कैसा लगेगा? यानी if I tell about my successful experiment to my sister, what would they do? कैसा लगेगा उसे? Dear student, it is a lengthy play. It will take time. We cannot do it in one class, so it will take time. In 2 or 3 class, we will be able to finish this play. This is very interesting play. So, dear student, for today it is more than enough. So, we'll see you in the next class. Thank you so much.